जय गुरु जी संगत जी। सबको प्यार भरा प्रणाम। थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। आई रियली डोंट डिजर्व टू बी हियर, बट that's your love that you have again invited me. So last time with Guruji's grace, we read The Laws of the Spirit World and about the Himalayan Masters by Swami Ramaji. The Laws of Spirit World was an eye opener. We came to know about the spirit world. हमें ऊपर की दुनिया के बारे में पता चला। हमें सब कुछ पता चला about the seven planes and everything, you know, how things work and what is blueprint, what is contract and how we come again and why we come again, क्या रीजन है दोबारा से जन्म लेने का। वो जो चैप्टर्स हम छोड़ के आए हैं उन्हीं को आगे बढ़ाने आते हैं, न्यू लेसन्स लर्न करने आते हैं, अपनी सोल को इवॉल्व करने आते हैं। सो ये एक बहुत प्यारी किताब है, डॉन ऑफ रियलिटी। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। उससे पहले ही जैसे कि सत्संग में भी गुरुजी बतलाते हैं, I've always been in love with the perfect masters and avatars, और एक के बाद एक बहुत ही गुरुजी ने इंस्पायर किया है पढ़ने को। सो ये बुक आई थी 2017 में, पर उससे पहले ही मेहर बाबा जी की गॉड स्पीक्स और उनके बारे में काफी वो जानने की इच्छा हुई, तो वो पूरी भी हुई। ऐसे ही गुरुजी ने उनके बारे में भी पढ़वाया। So this book, Dawn of Reality, it was released, in 2017. और ये बहुत 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 प्यारी किताब है। Dawn of Reality is a beautiful and an enlightening book. You know, Sangatji, this book depicts, author's love for her master. And this book is about reincarnation. It's written by Vidya Yetavili. And this book narrates her spiritual journey of two lives, actually, her past life and her present life. So, it validates that, yes, we all reincarnate. Reincarnation hota hai. और उसके बाद, in this book, she has narrated her profound experiences with Meher Babaji. Meher Baba means the compassionate father. And in present life, Vidya Yetavili, she's an entrepreneur, accomplished financial professional, and an internationally certified life coach as well. And she's also a master practitioner of NIP, I guess it's National Infrastructure Pipeline. And she has transformed many lives through her programs. And as I said earlier, this book was released in 2017. So she has shared her divine experiences with Meher Babaji in this book. Meher Babaji is known as an avatar, and he was born on 25th Feb 1894 in Pune, and he dropped his cross body. He attained Mahasamadhi, जिसको अमर तिथि भी कहा जाता है, on 31st January 1969. And his birth name was Mirwan Irani. And he's also called the Awakener. और जो उनकी डिवाइन श्राइन है वो मेहराबाद में है, अहमदनगर में. That is, I guess, 135 kilometers from Pune. So Baba ji हमेशा कहते हैं, I have not come to teach, but to awaken. I have not come to teach, but to awaken. जगाने आया हूँ, प्रीच नहीं करने आया हूँ, कुछ सिखाने नहीं आया हूँ. तो ये जो अवतार होते हैं, क्योंकि हम बहुत बहुत युगों से बहुत बहुत ऐसे सदगुरु आए, उन्होंने प्रीच भी किया, टीच भी किया, पर लोगों की जितनी समझ है उतना ही सीखा. तो फाइनली फिर अवतार जो अवतरित होकर आते हैं वो अवेकन ही करने आते हैं. इसी तरह से हमें पता है कि गुरुजी बहुत कम बोलते थे, बिकॉज बेसिकली वो भी अंदर हमारी आत्मा जो सोई हुई थी इतने जन्मों की, उसको जगाने आए थे. तो जब ईश्वर जिस किसी भी रूप में अवतरित होकर आते हैं, फिर उनको प्रीच करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस देने आते हैं. And Meher Babaji also said, don't worry, be happy.
Don't worry, be happy. जैसे गुरुजी ने कहा, खुश रहा करो. So what does that mean? Don't worry, be happy. You know, we can't escape the worries in our life. They're inevitable, no matter what. वो तो आती ही रहेंगी, चिंताएं आती ही रहती हैं, किसी ना किसी रूप में, worries and all that. You know, they are inseparable. Like from our lives, we can't escape from worries. But ये सब कुछ worries के साथ होते हुए भी हमें खुश रहना चाहिए. This is what it means. Don't worry, be happy. Because everything will be taken care of by Almighty and God. जो भी हमारा कार्मिक पैकेज है उसके अनुसार हमें हर हालात में खुश रहना चाहिए, which is not very easy, but ऐसी संगत करके, इस तरह की किताबें भी पढ़ के या गुरबानी सुन के और गुरुजी के उन चीजों को मान के जो उनके गोल्डन वाक्य रहे हैं, सो वो इंसान सीख जाता है कि हर हालात में हमें खुश रहना चाहिए. और ये बहुत बहुत इंग्रॉसिंग बुक है. इस जन्म में तो विद्या येडवली एक औरत के रूप में आई, पर वो जो उनका पिछला जन्म था, शी वॉज नोन एज डॉक्टर नीलू एंड शी वॉज इन मेल फॉर्म. सो हमें ये भी सीखने को मिलता है कि आत्मा, उस तरह से तो कोई जेंडर नहीं होता आत्मा का. कभी औरत, कभी पुरुष, कभी पुरुष, कभी औरत, इस तरह से जन्म मिलते रहते हैं. बहुत फॉर्म से हम निकलते हैं. जैसे हमें पता है पहाड़ों की जून होती है, you know, all sorts of lives, you know, species and animal life and all that. And finally when you get human life, उसके भी बहुत बहुत जन्म होते हैं. तो हर जन्म में मकसद तो यही होता है कि आत्मा को इवॉल्व करते रहना. So this book is about her life, you know, her experiences with Meher Babaji, and it captures her past life as well as current life. तो ये जो भी उनके जो एक्सपीरियंसेस कैप्चर हुए हैं, उसके साथ साथ एक लर्निंग भी बहुत सुंदर तरीके से सीखने को मिलेगी. एंड शी एक्सप्लेन्स एवरीथिंग इन अ वेरी 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 ल्यूसिड मैनर, जो कि जैसे ही हम पढ़ेंगे अंदर इम्बाइब होता जाएगा. सो विद गुरुजी's आज्ञा, I'm taking blessings from Guruji, Sangat and Meher Babaji. So we'll start this divine book that's known as Dawn of Reality, and the author is Vidya Yedawali. It's dedicated to beloved Meher Babaji. Okay, so the first is author's note. So how she, initiates it, we're going to read that. She says, I remember picking up my pen for the first time to note down in my diary what I was hearing in my heart. तो वो कहती है, मैं रिकॉल कर रही हूं जब पहली बारी मैंने वो कलम उठाई, वो नोट डाउन करने के लिए जो मेरे हृदय में मुझे सुन रहा था. Then she says, at that time I was motivated to do so as that insight was very precious. तो मुझे ये प्रेरणा कहाँ से मिली? उस insight से, वो deep understanding से, जो कि बहुत बहुत अमूल्य रही है. And then she says, I wanted to preserve it for myself. So she says that initially, तो मुझे थोड़ी पता था कि मेरी ऐसे ये जो भी मैं नोट डाउन करूंगी, ये किताब का रूप लेगी. मैं इसको संजोकर रखना चाहती थी, she says. So I began to note down such thoughts and learnings for years just for my happiness. She says कि मैं सिर्फ इनको लिखना चाहती थी अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, not knowing that it would become a book. She says little did I know कि ये किताब का रूप ले लेगी. And further, she says the idea for Dawn of Reality came as a surprise gift along with the title when I was at my master's tomb. तो जब वो अपनी मास्टर की टूम में गई होंगी, तो वहां पर उनको एक आश्चर्यजनक ये तोहफा ही था उनके रूप उनको जो मिला, कि उनको नहीं पता था उस टाइम पे कि ये डॉन ऑफ रियलिटी इसका नाम होगा, वास्तविकता की उदय. So the idea of Dawn of Reality, you know, it was just a pleasant surprise for her when she was at her master's tomb. Needless to say,
This book is dedicated to my beloved Meher Baba, who is the reason for everything in my world. Of course, आप जिसको भी मानते हैं, हम यही कहते हैं, like we say, oh Guruji, you're the reason for me that I'm alive. You're reason for all of us, and you mean the world to us. You're everything for us. So यही प्यार होता है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, वही प्यार होता है। और हमें पता है कि God's manifestation is different. He comes in different manifestations, but the light is one. This is a reincarnation story and memories connected to the previous life. कहते हैं reincarnation story है, पूर्ण जन्म की story है, और जो भी यादें हैं पुराने जन्म की, particularly the role of Avatar Meher Baba in both lifetimes. So she says, चाहे मेरा पूर्ण जन्म था, चाहे ये अब का जन्म है, जो रोल है अवतार मेहर बाबा जी का, वो बहुत बहुत important रहा है. So she says further, I urge the readers to consider the following while reading this book. तो अनुरोध करती हैं. So please keep these things in my mind, while reading this book. This book has been written in 3 parts. Number 1, sharing the story of my journey and life experiences. ये मेरे जीवन के अनुभव हैं और मेरे जीवन यात्रा की जानकारी है. Sharing my learnings on the journey. और जो भी मैंने शिक्षाएं सीखी हैं अपनी ये spiritual journey में, उसके बारे में है. Sharing beloved master Meher Baba's messages heard in my heart. और जो भी संदेश बाबा जी के रहे हैं उनके हृदय में, उसकी जानकारी के बारे में है. So I repeat, she says the book has been written in 3 parts. Number 1, sharing the story of my journey and life experiences. Number 2, sharing my learnings on the journey. And number 3, sharing beloved master Meher Baba's messages heard in my heart. उसके बाद वो कहती हैं, the topics have been arranged in the sequence of experience. जिस तरह से उनके अनुभव होते रहे हैं, उसी sequence में उन्होंने वो सब कुछ arrange किया है. And the related learnings in the following chapters. This learning reflects the knowledge bestowed by Baba instantly, like lightning, which gave me a tremendous joy. तो ये लर्निंग क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? जो भी नॉलेज बाबा ने उनके ऊपर दी है, जैसे वो बिजली की तरह इतनी तेजी से, और जो उनको it gives a tremendous ecstasy and exhilaration. Then she says, you might find that the experiences are few and the learnings are many. It's a beautiful line. She says, the experiences are few, चाहे अनुभव कम है, but the learnings are many, they are profound. I would say that is how the avatar works on the growth path. कहते इसी तरह तो अवतार काम करते हैं. For a little effort, आप थोड़ा सा भी प्रयत्न करेंगे, he gives so much, he gives in abundance. That's his nature. The learnings came as flashes at various places and time. Hence, I consider all learnings also as experiences. तो जो भी उनको अनुभव हुए, learnings हुई हैं, वो अलग-अलग जगहों पर हुई हैं, अलग-अलग समय पर हुई हैं, पर वो कहती हैं consider all learnings, जो भी मेरी learnings हैं, मेरे experiences ही हैं. Baba directly dictated certain things which were penned as I was listening. So she says, Baba directly told me, about the certain things. And while I was listening, I was jotting down as well. This is presented in the book with reference of place, date, and time. तो कहती मैंने सब कुछ प्रेजेंट कर दिया है इस बुक में, स्थान के अनुसार, वो डेट तिथि के अनुसार और समय के अनुसार. I surely know the voice is not mine because it comes with certain authority, clarity, and conviction which is entirely different from mine. तो जिस तरह की उनको आवाज आ रही थी बाबा की, तो वो कहती है मुझे पता लग जाता है, ये मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, क्योंकि उस आवाज में एक कमांड है, अथॉरिटी है, क्लैरिटी है, एक कन्विक्शन है, which is entirely different from mine, so I can easily recognize. At this time, I noticed the language also changes effortlessly,
and the mind is blocked from any judgments. Hence, those parts have been presented in this book as is. वो कहती हैं जो भी भाषा है ना, वो इतनी effortlessly अपने आप ही बदल जाती है कि जिस तरह से भी मुझे सुनाई दी है भाषा जैसे भी है, मैंने उसको as it is ही बुक का फॉर्म दिया है. कोई भी अपनी तरफ से मेरा कुछ नहीं है. Then she says, I have been asked several times how I differentiate the voice of Baba from my thoughts, and my answer is, तो कहती मुझे बहुत बारी प्रश्न तो किए जाते हैं, आपको कैसे पता लग जाता है ये आपकी आवाज नहीं है या उनकी आवाज है, मतलब आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाती हैं? तो वो क्या जवाब देती हैं? वो कहती हैं, I am able to differentiate Baba's voice from mine as I have been trained to do so over a period of time and by practice. तो वो कहती है मेरे लिए तो बहुत सहज हो गया है because I have been trained, you know, मेरी ट्रेनिंग रही है वैसी, और समय के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ सब कुछ पता लगने लग जाता है. Hence the readers are requested to know this pattern and flow of the book. तो वो रीडर्स से अनुरोध करती हैं कि जिस तरह सा उसका प्रवाह है, you know, ये किताब का और फ्लो है, उसको आप समझें. Then she says, enjoy the read and do write to me if you feel like. Vidya Yedawali. I really like this line, you know, the experiences are few and the learnings are many. चाहे आपके experiences कम ही हुए हों, पर वो experiences इतने profound कई बारी हो जाते हैं कि उसमें सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है. So now we're going to start the first chapter. This is beginning with the end. It's beautiful, beginning with the end. She says it was Sunday, 2nd December 1956. तो ये you know, it's interconnected, her past life and present life. तो ये पुराने जन्म का भी बता रही हैं. कहते रविवार का दिन था, 2 दिसंबर थी 1956. It was Sunday, 2nd December 1956. I was looking out of the car's window. मैं बाहर देख रही थी कार के. While we were driving from Pune to Satara. हम पुणे से सतारा की ओर जा रहे थे. I was gazing at the trees fleeting by. तो जिस तरह से हम भी जब कार में बैठते हैं तो पेड़ तो पीछे छूटते जाते हैं ना, सारे पेड़. तो कहते मैं गेज कर रही थी at the trees fleeting by, the breeze playing on my face, my mind not occupied with too many thoughts. तो अपने पुराने जन्म की बात कर रही हैं. तो कहते मैं ट्रीज को ऐसे देख रहा था और मेरे माइंड को इतना ऑक्यूपाई नहीं था, कोई विचार नहीं थे. For some unknown reason, I was feeling lighter inside. तो अंदर मैं बहुत ही light feel कर रहा था. And I thought to myself, the day has been good. The day has been good, I thought. I was happy to be there with others in the car. So उस कार में और भी उनके साथ कुछ लोग बैठे हुए थे. So she was pretty, उस जन्म में, he was pretty happy to be there, you know, with other fellow passengers in the car. Although there was no particular reason to be happy. मैं फिर भी खुश था. मेरे पास कोई से खास reason नहीं था खुश होने के लिए. The person who changed my life was sitting in the front seat. मेरे सामने, right in front of my eyes, you know, वो इंसान मेरे सामने बैठा हुआ था जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी. I would say it was so lucky. His master was sitting in the front seat. My eyes would effortlessly go to him, rejoicing in his presence. तो मुझे कोई effort नहीं करना पड़ रहा था. आपके सामने आपका मालिक, आपका परवरदिगार, आपका मास्टर हो तो effortlessly ही आपकी आंखें निहारेंगी उनको. And at the, you know, and she was also, I would say, like he in that janam, he was rejoicing, enjoying his presence. I had met him for the first time some 30 years earlier. तो 30 साल पहले कुछ मिले थे उनसे, बाबा से, and had been instantly drawn to him for some inexplicable reason. तो कहते मैं 30 साल पहले मिला और मुझे नहीं पता मैं क्यों उनकी तरफ मेरा, you know, I mean, you know, क्यों मेरा झुकाव उनकी तरफ होता रहा. I was instantly drawn and I can't even tell what were the reasons. I have no reasons to tell. It was like inexplicable reason. Since then, his face had flashed before my eyes time and again.
and I felt as if he was trying to communicate something to me. कहते उसके बाद उनका चेहरा जैसे भी है मेरी नजरों के सामने भी आता रहा, and I had that inkling that he was trying to communicate something to me. Such was his spell that my entire being yearned to be back with him. तो इस तरह का spell था. I mean, he got completely enamored and enchanted. He was spellbound. He was longing to be back with him. And so I visited him whenever I got a chance. जब भी मुझे मौका मिलता, I would visit him. He asked me to focus on my studies, and I complied with his wish, thriving on these brief interludes. तो वो आगे कहते हैं कि उन्होंने मुझे बोला भाई अपने पढ़ाई पे ध्यान दो. तो मैं भी बीच बीच में जो मेरी ये छोटी छोटी मुलाकातें होती थी ये मेरे को कुछ ना कुछ सिखाती रहती थी. These kind of meetings or short meetings with him would always rejuvenate me. So he says, he asked me to focus on my studies, and I complied with his wish, thriving on this brief interludes. I felt nourished. After finishing my studies, I finally decided to stay with him. जब मेरी विद्या, मेरी पढ़ाई, मेरी education पूरी हो गया, I made up my mind, I'm going to stay with him. I felt different when I was with him. बहुत अलग सी फीलिंग आती थी जब मैं उनके साथ होता था. Like a trusting child, I would follow all his instructions without question. अब बच्चा क्या है, उसका पिता कुछ भी उसको बोलेगा तो बच्चा ट्रस्ट ही करेगा ना. No doubts come in the mind of a child. So in the same manner, he says, like a trusting child, I would follow all his instructions without questions. I needed nothing else, wanted nothing more. और क्या चाहिए जब आपका प्यार पड़ जाए आपके मास्टर के साथ, आपके गुरु के साथ, डिवाइन मास्टर के साथ, तो जो सच्चा प्यार होता है उसमें और कोई चाह ही नहीं होती है. तो she says, I needed nothing else and wanted nothing more. My world revolved around him and his words were my command. मेरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती थी. उनके जो भी शब्द थे, they were like my command. All this seemed a little illogical, and at times, and I would ask myself, am I doing the right thing? कहते जो भी मेरे साथ हो रहा था मुझे illogical लगता था. I couldn't make head or tail of it, but then I would ask myself, am I doing the right thing? Each time I felt the answer emerge from within. This is the only right thing to do. तो कहते जब भी ऐसा कुछ प्रश्न मेरे अंदर होता था तो एक ही आंसर मिलता था. Each time I felt the answer emerge from within. This is the only right thing to do. तो ऐसा ही गुरुजी के साथ होता है. यही तो सोचते हैं जिनको भी लगता होगा कि हम ठीक हैं गुरुजी के साथ जुड़ के, क्या हमारी जिंदगी में सब कुछ हमने ठीक किया. अगर आप अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे तो यही जवाब मिलेगा, this is the only right thing to do. Years passed by, devoted to the work, with the people who were also living there with him. तो इस तरह से उनको जो भी इन्होंने अपना समर्पित किया, अपना काम समर्पित किया, इस तरह से साल बीतते गए. If at all my medical education was of any use, it was to serve the people there, and more importantly, he wanted me to do such work. So in his previous life, Vidya Yadavali, she was male, in that life, and she was into medical, she had her medical education, and she was practicing as a doctor. And she says that, मेरा उस जन्म में नीलू जी कहते हैं मेरा तो यही तो था ना कि मुझे दुनिया की सेवा करनी थी. It was to serve the people there, and more importantly, he wanted me to do such work. और मेहर बाबा जी भी चाहते थे कि ये वही काम करे. Then he says, I was part of many projects that had been initiated by him for the people and contributed passively and actively most of the time. तो कहते जितने भी प्रोजेक्ट्स थे जो उन्होंने शुरू किए थे बाबा जी ने, मैंने वो हर एक का, मैं चाहे मेरा मन हो ना हो, बेमन से भी करूं, बट मैं उनका हिस्सा था. I had no idea of the outcome of these projects and did not ponder much over them either. कहते मुझे उसका कोई ये नहीं पता था इसका आउटकम क्या होगा प्रोजेक्ट्स का, और ना ही मैं कुछ ज्यादा सोचता था. I would not contemplate or ponder over them, All of us simply trusted his greater understanding and complied with complete trust. बस हमें ये था कि हमें पूरा विश्वास और पूरे फेथ के साथ हमें करना है जो भी उनके ऑर्डर्स हैं. Some projects were closed abruptly. No reasons were given, no questions were asked.
जो भी बाबा जी ने कोई प्रोजेक्ट शुरू करवाए थे, वो कहते कई तो ऑल ऑफ अ सडन अब्रप्टली बंद हो गए, और किसी में हिम्मत भी नहीं थी पूछने की, क्योंकि हर एक का यही जवाब होता था, भाई ही नोज एवरीथिंग, बाबा नोज एवरीथिंग. एट टाइम्स द लाइफ एंड वर्क देयर सीम डिफिकल्ट, बट हिज प्रेजेंस वुड सरमाउंट इट ऑल. तो नीलू कहते हैं कि कभी कभी तो ऐसे लगता था कि बहुत मुश्किल हालात आ रहे हैं, बहुत मुश्किल लग रहा है, बट उनके मास्टर की प्रेजेंस सब कुछ भुला देती थी. एंड हिज प्रेजेंस वुड सरमाउंट इट ऑल. उनकी उपस्थिति ऐसी थी कि ये किसी न किसी तरह हर चीज पे विजय पा ही लेते थे. द थॉट ऑफ हैविंग अ पर्सनल लाइफ सीज टू एग्जिस्ट फॉर मी. नीलू जी कहते हैं मेरी कोई पर्सनल लाइफ तो थी नहीं, ना ही उसका कोई विचार था. समवेयर आई हैड अ डिजायर to get married and have a family. कहते मेरे अंदर एक डिजायर थी, that I wanted to tie an nuptial knot. I had a desire to get married and have a family, but he would know that too. बाबा जी को तो वो भी पता था, और पता ही क्यों ना लगे, but he would know that too, wouldn't he? No thought was private in his presence. तो मास्टर की प्रेजेंस में आपका कोई भी थॉट प्राइवेट नहीं होता है. वो सबका, उनको सबका ज्ञात हो जाता है, जो भी विचार हमारे मन में आते हैं. With time, even the desire faded. तो नीलू जी की पहले तो इच्छा थी कुछ शादी कराने की, घर बसाने की, but with the passage of time, that desire also faded. Loving him was the only emotion I now had in my life. तो वो कहते मेरा बस एक ही अब इमोशन था, I got to love him, love him, love him. That's it. I longed for his attention and his commune. तो मुझे यही होता था, मुझे उनकी अटेंशन मिले, मेरी कोई बातचीत हो उनके साथ. There were times when I was with him for days, and sometimes I did not see him for months. कहते कई बारी तो ऐसे होता था कि मैं कुछ दिनों के लिए भी उनके साथ होता था, और कई बारी तो मुझे महीनों तक उनके दर्शन भी नहीं होते थे. The only thing that kept me motivated was the thought that I was doing his work. तो एक ही ये चीज मुझे प्रेरित करती थी, that I was doing his work. Being in his inner circle. तो बाबा जी की एक मंडली रही है जिसमें सदस्य रहे हैं, तो ये नीलू जी भी उस मंडली के सदस्य रहे हैं. I was doing his work, being in his inner circle, and the hope that I would soon be with him. He would travel for days, sometimes months, and the only thing left for me to do was wait for him. तो कहते बाबा जी जैसे बहुत दिनों के लिए, महीनों के लिए भी ट्रैवल करते थे, तो मेरा यही था कि मुझे उनका इंतजार करना है. I was not particularly intelligent like some of the others in his group, nor did I have any special talents. तो नीलू जी, very modestly he says that ऐसा नहीं है कि I was really quite brainy, or I had that intelligence, और मेरे पास कोई इतना प्रतिभा भी नहीं थी कोई खास. I also did not possess any intellectual or spiritual knowledge that I could share and discuss with them. कोई खास spiritual knowledge भी नहीं थी मेरे पास. So I remained silent about my thoughts and ideas, watching others, learning from and absorbing all that was happening around me. कहते मेरे पास ना कोई ऐसी प्रतिभा थी कि स्पेशल टैलेंट था, इतनी इंटेलिजेंस थी, तो मुझे यही होता था, नहीं, I should remain silent only. और जो दूसरों के विचार, आइडिया सुन के मैं उसको ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता था. At times, I would put down my thoughts on paper, and he would know that too. मैं अपने विचार एक कागज पर लिखता था, पर मेहर बाबा जी को वो भी पता लग जाता था. For when I went to see him, जब उनको मिलने गया, he would ask me to read out what I had written. I would be taken aback by his knowing about my little secret. So Neelu says, जो भी मेरे मन में विचार थे, I penned down my thoughts on paper, and but he would tell that too. So I got astounded. I got really surprised, and I was taken aback that he knew my little secret. I would read it out hesitantly to him, and he would always appreciate what I had penned. तो नीलू जी कहते मैं बहुत झिझकते हुए उनके सामने पढ़ता था, बट वो मेरी सराहना ही करते थे, मेरी प्रेज ही करते थे, what I had penned, although I never thought my writing was good enough to deserve such praise. So नीलू जी कहते हैं जितनी प्रशंसा वो मेरी करते थे, मैं इतनी डिजर्व तो खैर नहीं करता था. In those moments, his love and acceptance would move me beyond words. जिस तरह से मेरे मास्टर ने मुझे प्यार दिया और मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे बयान करूं. And I would freeze that moment in my heart forever.
In those moments, his love and acceptance would move me beyond words, and I would freeze that moment in my heart forever. मैं उसको हमेशा के लिए अपने हृदय में ऐसे संजो के रखना चाहता था. His love was an electric charge that would energize me. I witnessed many events and heard many stories of his love and compassion. नीलू जी कहते हैं मैंने बहुत बहुत इवेंट्स और उनकी स्टोरी सुनी है, उनके प्यार के बारे में, उनकी दया के बारे में, उनके कंपैशन के बारे में. I secretly preserved his love in my heart, knowing and believing that his love for me was special. I treasured that feeling. कहते जो भी मेरे मन में उनके लिए प्यार था मैंने बहुत सीक्रेटली अपने हृदय में प्रिजर्व कर लिया, और ये भी था कि his love for me was very very special. उस फीलिंग को मैंने संजो के रखा. I treasured that feeling. His love was the anchor of my life, which was otherwise barren and desolate. So that's true. When you fall in love with a master, you think he is the only anchor of your life. आपके master के अलावा आप आगे नहीं चल सकते. And he gives a very good example that which was otherwise barren and desolate, and the master, makes our, that land fertile. आगे वो कहते हैं he knew my weaknesses. उनको मेरी कमियों के बारे में, weaknesses के बारे में पता था. I was emotional and an introvert. मैं emotional था, introvert था. Fond of sweets, मिठाई खाने का भी शौक था. Scared of snakes, सांपों से डर लगता था. And ghosts. Scared of snakes and ghosts, मुझे भूतों से डर लगता था. And shy with girls. So he tells about, his personality, his characteristics. He says that मेहर बाबा जी को तो मेरी कमियों के बारे में पता था. I was emotional and an introvert, fond of sweets, scared of snakes and ghosts, and shy with girls. So he says that I was quite coy with girls, but yeah, I did have a sweet tooth. He would often tease me, and I would love it because he was giving me his attention. तो वो चिढ़ाते भी थे मुझे, पर मुझे वो अच्छा लगता था. जैसे भी चाहे वो चिढ़ा ही रहे हैं, कम से कम मुझे अटेंशन तो दे रहे हैं. Then he says my ego melted in his love. तो ऐसा ही प्यार होता है परमात्मा के साथ, अपने मास्टर के साथ. जो भी अहम होता है वो पिघल जाता है, और वो पिघला ही देते हैं. ईगो तो ठहर ही नहीं सकती उस प्यार के आगे. My ego melted in his love. I could no longer tell if I was in love with him or devoted to him. कहते मेरा प्यार ऐसा था, कहते हैं ना, इस प्यार को क्या नाम दें. क्या ये प्यार है, मेरी डिवोशन है या भक्ति है, ये है क्या? And he says, perhaps he was my meditation. So that's so beautiful, master's love. And when we say, no, your love is my meditation. Not necessarily the meditation is, like you sit in a particular posture, you close your eyes and you make your spine erect and you say, that's the only meditation. No, if your master becomes your meditation, if your guru becomes your meditation, what else you want? तो बहुत बहुत प्यार से डिपिक्ट किया है नीलू जी ने. He says, my ego melted in his love. I could no longer tell if I was in love with him or devoted to him. Perhaps he was my meditation. I had no close family or friends and wished that when I died, he would be around. नीलू जी कहते हैं ऐसे कोई खास मेरी कोई फैमिली और मेरे दोस्त कोई मेरे आसपास नहीं थे. बस मेरी एक ही इच्छा थी, जब मैं मरूं तो उनके चरणों में हूं. He would be around. और क्या चाहिए? तुम सबकी यही इच्छा होती है कि जब भी हमारे प्राण पखेरु निकले, we should be at Guruji's feet और वो ही हो आसपास. With time, this thought became so strongly entrenched in me that I'm sure he became aware of it too. कहते जैसे समय गुजरता रहा, ये जो विचार है ना, नीलू जी कहते हैं मेरे मन में ऐसा घर गया, ऐसा strongly घर गया, it got entrenched. It was like so deep rooted. और मुझे पता था कि उनको भी पता लग गया. He became aware of it too. मेहर बाबा जी को पता लग गया कि जो इनकी इच्छा थी कि जब मेरे प्राण निकले, क्योंकि मेरी कोई खास फैमिली तो फ्रेंड्स थी नहीं, तो मेरे को यही था कि बस बाबा जी, my master should be around me. As the days passed, my attachment to him increased and deepened. जैसे 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 वक्त गुजरता गया, मेरा लगाव बढ़ता गया, बहुत गहरा होता गया. He would never say much, but I knew he sensed my feelings for him.
वो कुछ कहते तो नहीं थे पर उनको ज्ञात तो हो गया था, मास्टर से तो कोई बात छुपी नहीं रहती कि मेरी क्या फीलिंग्स है उनके लिए. With every chance that I received to interact with him, a strange happiness would course through my being. कहता जब भी मुझे मौका मिलता था ना इंटरैक्ट करने के लिए, एक अजीब सी खुशी मेरे तन मन हृदय में अंदर आत्मा तक जाती थी. More than anything else, this kept me going. इसी के सहारे तो बस चलता रहा. और यही है, हम भी सब इसी के सहारे ही तो चलते हैं ना. जब भी हम गुरु जी का सोचते हैं, कुछ भी है, जैसा भी एक ऐसी खुशी मिलती है. और ये हम हर संगत के मुंह से भी सुनते हैं कि नहीं, I'll always fall short of words. I will not be able to do justice what I'm feeling, right? Because this happiness is so different. It's so different. And he says that more than anything else, this kept me going. इसी के सहारे मैं चलता रहा. I would get inspired just by seeing him. उनको देखते ही बस मुझे वो इंस्पिरेशन मिलती थी. I would discover a renewed purpose to my life. तो यही होता है, ये प्यार होता है असली रब के साथ, परमात्मा के साथ. आपको एक पर्पस मिल जाता है. नहीं तो यही है यार, ये जीवन है क्या, किसके लिए जिए, कुछ मतलब नहीं रह गया. और जिस तरह के अब हम वक्त देख रहे हैं जहां सच्चा प्यार नहीं है, फैमिली का आपस में प्यार नहीं है, या वो रिश्ते नाते सब झूठे ही लगते हैं. तो एक गुरु जी के साथ अपने मास्टर परमात्मा, आप डिवाइन लाइट कहें, मेरे बाबा जी कहें, गुरु जी कहें, एक ही बात है, रोशनी एक ही होती है. एक आपको एक पर्पस मिल जाता है. ही बिकम्स एंकर ऑफ योर लाइफ एंड ही इज द वन दैट मेक्स यू कीप गोइंग. आगे बोलते हैं. My mind brought me back to the present. अब वो कहते जो विचार कर रहे थे ना नीलू जी, कहते फिर मेरा जो भी है, मेरा मन ना उस सिचुएशन में आ गया, वो प्रेजेंट सिचुएशन में. We were driving from Pune to Satara back to our resident bungalows. जैसे हमने शुरू में देखा कि वो कार में बैठे थे, बाबा आगे बैठे थे और भी लोग थे. तो कहते मेरा माइंड फिर प्रेजेंट सिचुएशन में आ गया. We were driving from Pune to Satara, back to our resident bungalows. We had fasted through the day. But still felt energetic and active. कहते हम सारा दिन हमें कुछ खाने को तो मिला ही नहीं, बट वो शायद वो जो एक कॉस्मिक पावर होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, उसी ने उनको बहुत एनर्जी दी. And he was so active and agile. I looked at him again. उन्होंने दोबारा से देखा मेरे बाबा जी को. And he was enjoying himself, playing pranks on us while appearing to look seriously through the front window. कहते जब मैंने दोबारा से देखा मेरे बाबा जी को enjoy कर रहे थे, मजाक भी कर रहे थे, playing pranks on us, पर कहीं ना कहीं मुझे वो कुछ गंभीर दिखाई दिए. जब मैंने उनको थोड़ा सा वो शीशे से देखा, फ्रंट विंडो से देखा, मुझे कुछ गंभीरता भी दिखाई दी उनके चेहरे में. I smiled, content and peaceful. आगे. A few more moments passed. जैसे ही कुछ क्षण गुजरे, then suddenly something happened. The car gave a big jerk with a creaky sound and I was thrown off my seat. एक तरफ से उन्होंने कहा, एकदम से क्या हुआ, कार को इतना बड़ा झटका लगा, एक क्रीकी सी साउंड की आवाज आई और मैं तो बस सीट से बाहर गिर गया. Something hit me on my head. जोर से कोई चीज मेरे सर को लगी. And an unbearable pain shot through my brain. कहते ऐसा दर्द हुआ, असहनीय दर्द हुआ, जो मेरे एकदम दिमाग से, मेरे उसमें से निकला, वो नहीं बयान किया जा सकता. I tried screaming, but I could not hear my own voice. तो नीलू says, I tried to scream, yell, but I couldn't hear my own voice. मुझे तो अपनी आवाज ही नहीं सुनाई दी. I felt like I was sinking and lost consciousness. मुझे ऐसे लगा मेरी शक्ति समाप्त हो गई है, मेरा दिल बैठे जा रहा है, कुछ हो गया है, मैं बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में हो गया. कहते after a few moments I regained consciousness. जब कुछ क्षणों के बाद मुझे consciousness हुई, and the first thing that came to my mind was Baba. I realized the car we were in had met with an accident. कहते जब मेरी कॉन्शियसनेस रिगेन हुई ना, तो मुझे बस बाबा की याद आई और मुझे ये भी पता लगा हमारा तो कार का एक्सीडेंट हुआ था. I ran to Baba's side. He was in pain, hurt and bleeding. मैं बाबा की तरफ भागा, वो भी दर्द में थे, हर्ट हुए थे और खून बह रहा था. He looked at me. His face was glowing like never before.
इस तरह से उनका फेस, और what a resplendent shine was there, और जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी. And I said, Baba, you are injured. Please let me help you. बाबा आपको चोट लग गई है, प्लीज मुझे आज्ञा दे कि मैं आपकी मदद करूं. गिव मी योर हैंड सो आई कैन हेल्प यू आउट ऑफ द कार. मुझे अपना हाथ दे, मैं आपको कार से बाहर निकालूं. बाबा kept looking at me. बाबा बस मुझे देखते रहे. My heart went out to him. My beloved Baba was hurt and in pain. मेरा हृदय इतना दुखी हुआ. मैं अपने बाबा को कैसे देखूं इतनी चोट में, इतने दर्द में. I could not bear to see him like that. मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ. I wanted to do something immediately. I said again, Baba, please let me help you. Baba smiled and said, Neelu, please go. Someone will help me. I did not hear what he had said clearly, so I said again. कहते मुझे नहीं सुनाई दिया बाबा ने क्या कहा. मैंने दोबारा से कहा, बाबा, you are bleeding. Where do you want me to go, leaving you here like this? आप क्या बात कर रहे हो बाबा? आपके खून बह रहा है, आप मुझे कह रहे हो मैं छोड़ के कहाँ चले जाऊं? क्या कह रहे हैं आप? Baba again said, Neelu, please go. I am all right. I was a little irritated that he was not listening to me in spite of being heard. तो नीलू कहते हैं, I got irked कि बाबा क्या कर रहे हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, इतनी चोट लगी हुई है, खून बह रहा है, और बाबा कह रहे हैं तुम चले जाओ, मैं ठीक हूं. Baba explained, Neelu, it's time for you to leave this place. चले जाओ यहां से. Don't worry, everything is all right. तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है. I am here and will take care of everything. बाबा कहते हैं मैं यहाँ हूं भाई, मैं सब कुछ ध्यान रख लूंगा. Just leave. For a moment, I was angry that Baba was asking me to go when there had been such a big accident. Just then Baba again said, Neelu, just leave right now. You are dead. Look at your body lying there. अब नीलू को थोड़ी पता है कि जो वो बाबा से बात कर रहा है उसकी आत्मा कर रही है. उसका शरीर तो वहां पड़ा हुआ है. यही होता है जब आत्मा एकदम से एक्सीडेंट होता है, झटका लगता है, आत्मा को नहीं पता चलता. जब ये अनटाइमली डेथ या जैसे भी एक्सीडेंट के द्वारा आती है, एकदम से आत्मा निकलती है, आत्मा के लिए ये बहुत शॉकिंग चीज होती है. वही नीलू के साथ हुआ. उसको नहीं पता था, वो तो अपनी तरफ से बाबा की मदद कर रहा है. कौन दे सकता है अपने मास्टर को इस हालत में? पर बाबा ने कहा, नीलू जस्ट लीव राइट नाउ. यू आर डेड. यू आर नो मोर. तुम मर चुके हो. तुम्हारा शरीर वहां पड़ा हुआ है. Look at your body lying there. Only then did I look at the other side of the car where I saw my body lying. जब मैंने दूसरी तरफ देखा तो सच में मेरा शरीर वहां पड़ा हुआ था. I was terribly scared. तो obviously डर तो लगेगा ही ना जब बंदे को पता चले मैं तो अब हूं ही नहीं, ये तो मेरा शरीर पड़ा हुआ है. I was terribly scared. I was dead. I had no body. I asked Baba, what is this? How can I be without you and you want me to leave? क्या कह रहे हो बाबा? मैं आपके बगैर नहीं रह सकता. आप मुझे कह रहे हो यहां से मैं चले जाऊं? I cannot leave and go anywhere. मैं नहीं जा सकता कहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं आपको नहीं छोड़ सकता. Baba said, Neelu, I will not leave you. And I'm always with you. But right now, you've got to leave this place. तो बाबा क्या कहते हैं? अरे नीलू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, ना छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे संग ही हूं, पर अभी तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा. So leave this place. बाबा कहते हैं obey me like always and right now. तो नीलू बहुत ही वो जो साइल रहे हैं, तभी बाबा ने कहा मेरी आज्ञा का पालन करो जिस तरह से तुम हमेशा करते रहे. तुमने किंतु परंतु कभी नहीं किया. obey me like always and leave right now. Hearing these words and being left with no choice. अब कुछ विकल्प तो रहा ही नहीं नीलू के पास, क्योंकि बाबा का ऑर्डर तो पत्थर की लकीर, वो तो करना पड़ेगा. जब ये शब्द सुने, कोई चॉइस नहीं रही. नीलू कहते हैं I left the place with deep sorrow of separation from Baba, not knowing where to go. तो इस तरह से ही होता है. अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ हो और गुरुजी कहें चले जाओ, हम क्या कहेंगे? नहीं गुरुजी, आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, नहीं जा सकते. तो गुरुजी कहेंगे नहीं जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ. तो अंत में तो कहना मानना ही पड़ेगा. तो उसी डीप सॉरो के साथ, सैडनेस के साथ
in that melancholic, that mood, Nilu had to leave because he had to obey his master. He had to be separated from Baba. And furthermore, he didn't know where to go. कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो शरीर में तो है ही नहीं, शरीर तो कार के दूसरी तरफ पड़ा हुआ है। तो तभी जब हमने शुरू में पढ़ा कि जब बाबा थोड़ा एंजॉय भी कर रहे थे, प्रैंक्स भी खेल रहे थे, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा उन्होंने गंभीरता से देखा, क्योंकि बाबा को पता था ये चीज होने वाली है। जब भी अवतार कोई ना कोई चीज करते हैं, उसके पीछे कारण होता है। जैसे गुरु जी ने सबके कर्म अपने ऊपर लिए, ऐसे बाबा जी के ने भी बहुत मेजर एक्सीडेंट्स करवाए हैं, खून बहाया है। तो ये इनका हमेशा एक यूनिवर्सल काम होता है, जो एक इंसान की बुद्धि के बहुत ही मतलब ऐसी बातें बहुत दूर दूर तक नहीं समझ आती, पर अवतार जो भी अवतरित होकर आते हैं उनका कोई बहुत ही कारण होता है। आगे हम पढ़ेंगे मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप। अभी तक हमने पढ़ा कि नीलू को वहां जाना पड़ा, बाबा ने कहा भाई जाओ, चले जाओ और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा हूं, पर राइट नाउ यू गॉट टू लीव। तो जो भी लॉज होते हैं इस दुनिया के या जो भी, वो तो निभाने ही पड़ते हैं। गुरु शिष्य संबंध। अब आगे क्या कहते हैं विद्या गेदावली, मैं दोबारा से बताना चाहूंगी कि वो पिछले जन्म में डॉक्टर नीलू रहे मेल के रूप में, और इस जन्म में फीमेल के रूप में। Before I go further into my story, it is necessary to speak a little more about the master-disciple relationship. She says, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ. I would like to elucidate on the master-disciple relationship. The master is so compassionate, इतने दयालु होते हैं master, that irrespective of the limitations of the disciple, चाहे जितनी भी कमियां हो एक डिसाइपल में, he accepts the disciple with all his shortcomings. So ये होता है मास्टर का प्यार। हम सब में बहुत कमियां होती हैं, पर वो कमियों के बावजूद हमको अपनाते हैं, क्योंकि उनका प्यार अनकंडीशनल होता है, वो कमियां नहीं देखते हैं। The master not only provides direction and support at various steps on the spiritual path, but also provides the means and opportunities to learn. कहते जो मास्टर होते हैं ना, एक आपको दिशा या उस तरह की सपोर्ट ही नहीं देते हैं, पर आपको उस तरह की सुविधाएं, उस तरह का आपका रास्ता भी बना देते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज उस तरह की ला देते हैं, ताकि आप उसके द्वारा लर्न कर सकें। Whenever the disciple fails, the master forgives and helps him through the painful process of learning. ये बिल्कुल सही है। जब भी डिसाइपल कहीं फेल हो जाता है, मास्टर बिल्कुल ही बख्शते हैं, माफ कर देते हैं, पर वो जिस तरह की लर्निंग के थ्रू सिखाना चाहते हैं ना, वो आसान नहीं होती है, वो पेनफुल होती है। बिकॉज पेन के द्वारा ही इंसान सीखता है असली चीजों के बारे में। You know, life is not about rosy path. कांटे भी आते हैं, कंकर भी पड़े होते हैं रास्तों में, उसके ऊपर भी चलना पड़ता है। तभी एक ट्रू डिसाइपल सीखता है। जिसको मास्टर ने तराशना होता है, आगे बढ़ाना होता है, तो वो फूलों की सेज पे नहीं चलवाते मास्टर। It has to be like, it's a thorny path. आगे बोलते हैं, This relationship is the most special, loving and precious of all relationships. That's really, really, really true. जो relationship होता है master disciple का, ये बहुत खास होता है, प्यारा होता है और precious होता है। आप जितने भी रिश्ते नाते देख लो, उसमें से सबसे ऊपर यही होता है। If the master is genuine, no matter how bad the student may be, the master makes a positive difference provided the disciple is sincere. कहते अगर मास्टर सच्चा है ना, तो चाहे स्टूडेंट, पंजाबी च कहते ना, जिन्ना मर्जी भैड़ा होवे, जितना मर्जी खराब होए, पर मास्टर उनकी लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस लाते हैं, पर बशर्ते वो डिसाइपल सिंसेयर होना चाहिए, दोगला नहीं होना चाहिए। क्योंकि संगत सिर्फ वही संगत नहीं है जो सब उस तरह बैठे हैं, संगत में भी उस तरह के लोग हैं जो संगत का मुखौटा पहन के धोखेबाजियां भी करते हैं। तो वो जो पॉजिटिविटी अंदर से नहीं होती, वो सच्चाई अंदर से नहीं होती, सिंसेरिटी नहीं होती, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से होती है। बट मास्टर नोज इट ऑल, एज वी हैव रेड इन द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, यू कैन नेवर एवर फूल गॉड। तो आगे लिखते हैं, ही इज गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। अरे वो तो ईश्वर है, ये तो चोला लेना पड़ता है।
when the student starts depending on the master for everything, जब एक student depend करने लगता है ना master पे हर चीज के लिए, at the right time, मैं दोबारा से पढ़ूंगी. When the student starts depending on the master for everything, the master at the right time breaks this dependency by taking the disciple through the difficult process of self-trust. ये बिल्कुल सही बात कही है. क्या होता है, कई बार हम अपने मास्टर पे पूरी तरह डिपेंड करते हैं हर चीज के लिए, पर एक वक्त ऐसा भी आता है उस डिपेंडेंसी को जो आप निर्भर करते हो उसको तोड़ने के लिए वो मास्टर क्या करता है, आपको डिफिकल्ट प्रोसेस से निकालता है ताकि आपको अपने ऊपर विश्वास आए. आप हर चीज अपने मास्टर पे नहीं छोड़ सकते, आपको खुद भी कदम कई बार उठाने पड़ते हैं, आपको चॉइसेस लेनी पड़ती है, आपको बहुत कुछ खुद भी देखना पड़ता है. और मास्टर वो डेलिबरेटली करते हैं, वो देखते हैं कि वो डेलिबरेटली वो डिपेंडेंसी तोड़ देंगे, नहीं तो आप अपने कोई भी चॉइसेस नहीं खुद पे कर पाएंगे. आप हर चीज के लिए अपने मास्टर को तंग करेंगे, विच इज नॉट अ गुड थिंग. When the student starts depending on the masters for everything, the master at the right time breaks this dependency by taking the disciple through the difficult process of self-trust in order to see God in himself, ताकि वो गुरु तत्व, वो ईश्वर का तत्व हम अपने अंदर जान सकें. अगर आप हम सब कुछ गुरु जी पे ही छोड़ेंगे तो फिर हम खुद पे कर्म क्या करेंगे. वो भी तो देखते हैं गुरु जी कई बार खुद भी आपको लेके आएंगे फिर छोड़ देते हैं हाथ, वो भी देखते हैं कि अब देखते हैं ये कितने खड़ा है की करेगा हुन. पर अपने अपने गुरु जी के प्यार, फेथ, इन चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए. बिकॉज द मास्टर वांट ही डज इन ऑर्डर टू सी गॉड इन हिमसेल्फ, ताकि वो शिष्य अपने अंदर ईश्वर को पहचाने, उस गुरु तत्व, उस लाइट को जाने. Indeed, the master is interested in the freedom of the student from all bondages, including the cycles of life and death. It is so beautiful. कहते जो मास्टर है ना, उसको इंटरेस्ट आपकी इस दुनियावी चीजों में ज्यादा नहीं है. उसको इंटरेस्ट किस में है, ये जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है ना, असली चीज. गुरु जी कहते असली चीज मंगलो. तो जो भी मास्टर अवतरित लाइट के रूप में आते हैं, जो लाइट अवतरित होके आती है, उनका एक ही इंटरेस्ट होता है कि ये जो इनके बॉन्डेजेस है ना, जीवन मरण का चक्र है ना, इसको मैं इससे बाहर निकाल दूं. और वो आसान नहीं होता निकलना. जैसे पहले भी गुरुजी बतलवाते हैं सत्संग में कि असली मोक्ष है जिंदे जी मर जाना. जिंदे जी पहचान जाना से कादे वास्ते आए हैं, हम किस चीज के लिए आए, फॉर व्हाट पर्पस वी हैव कम ऑन दिस अर्थ. हम सबका कोई ना कोई पर्पस रहा है, हमको सब कोई ना कोई चीज सीखने आए हैं, इन्वॉल्व होने आए हैं. एक्चुअली ये सारा जैसे कहते हैं ना, हमने बहुत बारी सुना भी है कि ये सब माया है, वो रियलिटी में है, इट्स इल्यूजन ओनली. बट द थिंग इज दैट वी पीपल गेट सो इन्वॉल्व. और करे भी क्यों ना, मतलब ये दुनिया ही ऐसी बनाई है ईश्वर ने, वो चीजें ऐसी, कर्मों का चक्कर, वो रिश्ते नाते, वो सब कुछ हम उसमें अंदर धसे रहते हैं. पर जैसे गुरु जी ने कहा, दुनिया च वीर दुनिया च रहंदे होए दुनिया दे ऊपर रहना सीखो. तो वो ही है. ऐसा नहीं है कि he said that अपनी लाइफ मत जियो, एंजॉय मत करो, सब कुछ करो, but at the same time be watchful of your karmas. क्यों watchful? क्योंकि हमें ही वो कर्मों का भुगतान करने आना पड़ना है. अभी तो हम बहुत चालाकियां भी कर रहे हैं, शैतानियां भी करते हैं, हम धोखेबाजियां भी करते हैं, गुरु को नाम लेके भी करते हैं. क्या हम इससे बच जाएंगे? हम कभी भी नहीं बचेंगे, हम बच ही नहीं सकते इन चीजों से. वो भगवान के ये जो लॉज बनाए हैं ना, वो उसको निभाने के लिए जितने भी देवी देवता थे उनको भी आना पड़ा. कभी भी अगर हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो होता है मृत्यु लोक में ही राम जी का जन्म हुआ है, कृष्ण जी का जन्म हुआ है, किसी ना किसी रूप में आना पड़ता है. जैसे नारद जी ने ही विष्णु जी को भी वो उस तरह से कर्स या जो भी की माया थी या जैसे भी है कहा था ना कि तुम भी वन वन घूमोगे, तुम्हें भी इस तरह का वियोग सहना पड़ेगा. तो उस चीज के लिए उनको अवतरित होकर आना पड़ा. तो ये चीजें होती हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे, हाउ कैन वी कम आउट ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. हम कह तो बहुत आसानी से रहते हैं, गुरुजी इन चक्रां तो कड लो. ऑफ कोर्स वो कड्डा नहीं आए ने, वो इसी चीज के लिए उनको भी नीचे आना पड़ा, नहीं तो रब भी नहीं आना चाहता. ये जो आजकल की दुनिया है, द इविल इज ऑन द राइज. वी हैव रेड इन द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड कि
evil is on the rise, उस तरह की रूहें ज्यादा हैं, चलाकियों वाली और धोखेबाजियों वाली और evil रूहें बहुत ज्यादा हैं। और पर गुरुजी ने सत्संग के द्वारा वो सत्युग लाने की कोशिश की है, बट उस तरह के लोग भी हैं जो मुखौटा पहन के बैठे हैं और क्या कर्म कर रहे हैं, पर उसका सबका भुगतान करने तो आना ही पड़ेगा। दैट इज सो शॉर्ट, उससे हम नहीं भाग सकते। तो उसको बचाने का यही तरीका है, बंदा सच्चे सुच्चे रास्ते चले। जैसे गुरुजी ने कहा कि जे किसी दा तुसी चंगा नहीं कर सकते तो माड़ा भी ना करो, तो माड़ा नहीं करना चाहिए। सो अगर हम अच्छाई नहीं कर सकते किसी की, तो माड़ा भी ना करें। सो इस तरह से ये बहुत प्यारी ये हमने अभी जो चीज पढ़ी है कि मास्टर है ना, वो आपको, चलो आप डिपेंड करते हो, पर एक समय आता है वो डिपेंडेंसी वो तोड़ देता है, फिर वो चुपचाप एज अ स्पेक्टेटर देखता है कि भाई हुन बंदा की करता है, कितने खड़ा है। बिकॉज इवेंचुअली मास्टर की यही इच्छा होती है कि अपने स्टूडेंट को वो रियल फ्रीडम देना। अगर हम ये छोटी छोटी चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें मांगते हैं, तो वो हम अपने आप को ही बांध रहे हैं। अरे वो तो दे ही देंगे, पर वो हम आगे बनते अपने आप को और उस बंधन में बांध रहे हैं। इन चीजों को ना मांगते हुए असली चीज को मांगना ही वो रियल फ्रीडम देता है, और इसी तरह से हम इन बॉन्डेजेस से हम बाहर आ सकते हैं। सो इस तरह से we'll continue tomorrow. It's a beautiful book. As you know, so far we have learned that Vidya Yedavali tells about the past life, that she was male and she was as Dr. Neelu, and Dr. Neelu was in the inner circle of Meher Babaji, and he was going in the car, and after that, suddenly there was a jerk in the car, and they met with an accident, and he was thrown out of his seat, and his head was hit by something, I don't know what, but it was like unbearable pain in his head, and he was screaming, but he was unable to hear his own voice. And he was like, Baba, I can leave you. I can leave you. And Baba was like, no, Neelu, you've got to leave. Obey me always. और ये आगे हम पढ़ेंगे कि आगे जाके कैसे 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 आगे क्या होता है. So it's a beautiful divine book. So I would say thank you, Sangaji. Thank you, Guruji. Thank you, thank you, thank you, Meher Babaji. And that's your love. ये परफेक्ट मास्टर्स का लव है, तारों का लव ही है, और गुरु जी की आज्ञा के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है. तो इसी किताब के माध्यम से बहुत बहुत चीजों पर रोशनी डलेगी. It is a beautiful book, and I would like to thank Vidya Yedavali as well. So thank you, Sangaji, for listening to me patiently. And I'm so sorry if I made some mistakes. Yeah, in my previous readings, I've tripped on so many words. I made grammatical mistakes, in terms of tenses, verbs, or whatever. But that was not deliberately done. And I would be careful this time, because sometimes you get into the flow of the book and sometimes you're not even aware, of your mistakes. But, I want to say sorry for all the wrongdoings I've done. And thanks for choosing me to read this book. And I read this book in 2017. And after that, whenever I wanted to pick it up, somehow I couldn't read. So maybe I was meant to read it today. So thank you. Thank you so very much. Thank you, Ekta ji. Thank you, Shilpi ji. Thank you, Guruji. Thank you, Auntie. It's really wonderful to hear you read the book, and definitely this book is also very beautiful. Thank you, everybody, for joining in. We'll see you again same time tomorrow. Jai Guruji.